تختی چل رہی ہے، حروف حلقی بھی ہو گئی، اقفاء عقدی بھی ہو گئی. خوب غور سے دیکھنا ہے. جن بچوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ قاعدہ ہوتا کیسے ہے اور کہاں ہوتا ہے، پڑھتے رہتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا ہے، وہ بچے غور سے دیکھ لیں. آج انشاءاللہ یہ پتہ چل جائے گا کہ قاعدہ ہوتا کہاں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور پہچان بھی ہو جائے گی. دیکھیے یہ نون ساکن جو ہے جزم والی نون بھی کہتے ہیں. کیا سمجھ گئے؟ جیسے جزم والی با کہتے ہیں جزم والی با. جزم والی با میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پتہ ہے؟ جزم والی با میں قلقلہ ہوگا. اور جزم والی دال میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور جزم والی دال میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ قلقلے کا حرف نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں یہ قلقلے کا حرف نہیں ہے. اور قاف میں ہوگا قاف میں ہوگا ایسے ہو جائے گا. جزم نہیں لگنا چاہیے، لگے گا نا تو نہیں ہوگا. جزم لگا تبھی تو ہوگا. جب جزم لگے گا میرے سمجھ میں آ رہی؟ جب یہ جزم لگے گا جب یہ قلقلہ ہوگا اس کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. اور جیم میں جزم والی جیم میں ہوگا جزم والی جیم میں تو 5 حروف ہو گئے. کیا 5؟ دیکھو قاف قاف با جیم دال ہو گئے 5. یہ جزم جس پر بھی لگ گیا اس کو ساکن کر دیتا ہے. کیا ساکن کر دیتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جزم جس حرف پر بھی لگ جائے گا اس کو ساکن کر دے گا. اور یہ 5 حروف وہ ہیں جن کے اوپر لگ جاتا ہے ان کو ساکن بھی کرتا ہے اور قلقلہ بھی کراتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ 5 حروف ایسے ہیں اگر ان کے اوپر جزم اسی طرح سے لگا ہوا جائے ساکن ہو تو ان میں کیا کہا جائے گا؟ بیٹا بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے پتا تھی نہیں پتا تھی نا؟ ہاں. تو یہ جو ہے جزم جو ہے جزم یہ با پر بھی آ سکتا ہے، یہ سین پر بھی آ سکتا ہے. آئے بے یہ سین ساکن تو ہے. یہ 5 حروفوں میں کوئی سا نہیں ہے اس میں سین تھوڑا ہی ہے. ہاں تو جتنے بھی حروف ہیں قرآن شریف میں نورانی قاعدے کے جو حروف ہیں نا شروع میں کتنے 29 کتنے وہ حروف جو ہیں ان سے ہی پورا قرآن شریف پر تیار کیا گیا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ مجراتِ حروف مفردات میں ان سے ہی پورا قرآن شریف. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس میں سے کوئی سے بھی حروف پہ یہ جزم آئے گا نا جزم. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جزم آئے گا تو اس کو ساکن کہتے ہیں. کیا کہیں گے؟ ہاں. اور ساکن حرف کو پیچھے سے ملا کر پڑھایا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات بیٹا؟ بیٹا بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلے پتا تھا؟ ہاں. تو یہ پیچھے سے ملا کے جو پڑھتے ہیں نا تو جزم والے حرف کو پڑھتے ہیں. کیسے؟ ہاں. تو یہ سین جو ہے ساکن کا ہو گیا. جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہا جاتا ہے. پڑھایا نا پڑھایا؟ تو یہ ساکن کا ہو گیا لیکن اس میں قلقلہ نہیں ہونے کا. کیوں؟ قلقلہ کے 5 حرف ہیں. کیا کتنے؟ 5. دیکھو غور سے سننے والی بات ہے. آج بہت کچھ پتہ چلنے والا ہے تمہیں. کتنے حرف ہیں؟ 5 حروف ہیں. یہ ان سے ان 29 حروفوں میں سے یہ 5 حروف ہیں. کتنے؟ 5. ان سے قاف ساکن ہوئے تو قلقلہ کریں گے اور چاہے کوئی سا بھی حرف ساکن آ جائے اس میں قلقلہ نہیں کریں گے، بس پیچھے سے ملا کر پڑھ دیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے لام آ جاتا ہے الحم. کیا
ये है, ये क्या हो गया? अल हमदु, क्या? अल-हम्दु। ये लाम साकिन आ गया ना, आ गया। कोई सा हर्फ साकिन आ सकता है, लेकिन अगर इनमें से आवे कोई सा हर्फ साकिन तो कलकला करेंगे, लाम में कलकला नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई बेटा? बढ़िया करता आगे। इसी तरह से ये नून साकिन जो है, ये साकिन है, जज्म वाली नून है, लेकिन कलकले वाली नहीं है। समझ में आ गई बेटा बात? हाँ। अब जिस तरह से ये 5 हरूफ हैं कलकले के, काहे के हर्फ है कलकले के, हमें पहचान जब तो होती है जब ये वाले हर्फ आते हैं कलकला करो, जब पहचान होती है ना। इसी तरह से ये क़ाए हक़ीक़ी जो है उसकी भी पहचान हर्फ से होती है। कैसे? हाँ, कैसे होती है? हर्फ से। इक़्फ़ा के 15 हरूफ हैं। क्या? कितने? 15 हरूफ हैं। वो कौन कौन से हैं? जी, कौन कौन से हरूफ हैं? जी, देखिए ये क्या हो गया? मेरे दिख रहा है? इसमें रोशनाई कम हो गई। एक बच्चा रोशनाई बोलेगा डालने की, क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? क्या? जी में देख लिया सही से? अरे जीम तो कलकले में भी है। समझ में आ गई बात? जज्म होगा तभी तो कलकला होगा भाई, वरना क्यों होगा? इक़्फ़ा हक़ीक़ी हो जाएगा फिर इक़्फ़ा के 15 हर्फों में से। समझ में आ रही बात? जीम पर अगर जज्म है, बेटा बात समझ में आ रही है? जज्म होगा तभी तो कलकला होगा, जज्म नहीं होगा तो हरकत होगी तो कलकला होने की ही नहीं। समझ में आ गई बात? डाल देगा 2-3 सफाई के साथ में डाल देगा। ये ला बेटा, ये कितने हरूफ हो गए? 15 हरूफ हो गए। समझ में आ गई बात? ये 15 हरूफ जो है, लाइट जलाओ, 15 हरूफ जो है, जिस तरह से कलकले की पहचान हमने यहाँ करी थी ना, ये बा, ता, बा, जीम, दाल, ये जो हरूफ है, जब इनके ऊपर जज़म लिखा हुआ होगा, जब इनमें कलकला करेंगे। समझ में आ गई बात? इसी तरह से इनसे भी पहचान की जाएगी कि क़ाए हक़ीक़ी होगा या नहीं होगा। अब सवाल आता है कि क़ाए हक़ीक़ी होगा कैसे? इनके आने के बाद में इसमें तो ये क्या कलकला कर देते हैं, एकदम साकिन होगा तो कलकला कर देते हैं, लेकिन इसमें कलकले के हर्फ भी है कुछ, है ना? अब कलकले के हरूफ हैं तो उनमें कलकला भी होगा, फिर होगा ना होगा। लेकिन कलकला हमने ये भी पढ़ा कि जब ही होगा जब साकिन होगा, जब ये हरूफ क्या होंगे? साकिन होंगे, जब तो कलकला होगा। तो इसमें क़ाए हक़ीक़ी में जो साकिन होगा आती नहीं है, हरकत लगी भी आती है। समझ में आ गई बात? ये तो ज़बर की आएगी, ये ज़ेर की आएगी, ये पेश की आएगी। समझ में आ गई बात? तो इसलिए जब साकिन नहीं है तो कलकला भी नहीं होगा। समझ में आ गई बात? ये है ना? आप भी इसमें से आ गया, और भी आ गया इसमें से, और भी आ गया इसमें से। समझ गए? और क्या आया? बा, जीम, जीम भी आ गया। तो ये हरूफ वगैरह देखिए याद करने अच्छी तरह से, जब भी क़ाए हक़ीक़ी कायदा याद होगा। समझ गए? तो अब जो है सवाल उठा है कायदा, तो कायदे की पहचान हम कैसे करें? लाइन हम पढ़ते चले जाते हैं लेकिन हमें यही पता नहीं चलता कायदा कौन। ऐसी है ना? ऐसी होता है ना? हम पढ़ रहे हैं, सबक पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो पढ़ते चले जा रहे हैं, उस्ताद हमारे मालूम कर रहे हैं, पता कायदा कहाँ हो लिया और कौन सा कायदा हो लिया, हमें पता ही नहीं चल लिया। ऐसी होता है ना? ऐसी होता है ना? तो आज बहुत गौर से देखने वाली बात है। समझ गए? और एक आध को नींद आ रही हो तो सो जाओ सही से, ठीक है? धीरे सो जाओ आराम से। तो आज जो है वो चीज पता चल जाएगी आपको जिसकी कभी गलती नहीं होगी इंशाअल्लाह, बशर्ते के बच्चे गौर से देखें। बेटा मुंह दिया, नींद खत्म हो जाएगी, बशर्ते के
جن بچوں کو پتہ نہیں ہو تو بالکل غور سے وہ دیکھے اور مجھ سے معلوم کر لیں اگر سمجھ میں نہ آئے تو جو قاری صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا ہم پہچانی نہ ہونے کی سمجھ گئے بتا سکتے ہیں ایک دم کو. تو یہ جو ہے ہمارا یہاں اخفاء حقیقی کا قاعدہ شروع ہو رہا ہے. کہے گا اخفاء حقیقی کا قاعدہ. ہمیں یہ 15 حروف بقاعدہ دیکھا مان لیجیے یاد ہو کیا بقاعدہ دیکھا ہمیں یاد ہو گئے یہ مان لیجیے. اب ہمارا جو ہے وہ ہے یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. سمجھ میں آگی بات ووجدک عائلا فأغنیٰ. قائم ہے سورہ ضحیٰ. سمجھ میں آگی بات. تو اب یہ جو ہے یتیما فآویٰ نورانی قاعدے میں لکھا ہوا ہے نا تو ہم نے تو پڑھ رکھا ہے اس میں اخفاء حقیقی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے اب کہاں ہو رہا ہے وہ ہمیں قاعدے میں بھی قرآن شریف میں بھی پتہ جب چلے گی. بیٹے ادھر مت دیکھو جب میں کہوں قاعدے میں دیکھنے کو چلیے دیکھنا ورنہ یہاں سمجھو بس سمجھ لو بڑھیا کر کے. جی بیٹے یہ نون ساکن دکھ رہا ہے جی یہ تنوین دکھ رہی ہے دو زبر کی بھی دو زیر کی بھی اور دکھ رہی ہے دکھ رہی ہے یہی پہچان کراتی ہے. یہ تو نون ساکن آئے گا یا دو زبر آئیں گے یا دو زیر آئیں گے یا کوئی سے بھی آ سکتا ہے ان میں سے. جہاں بھی آ جائے گا وہیں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ قاعدہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے قاعدہ. اب بچوں کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اب ہم سمجھاتے ہیں لکھ کر. کیا اب ہم لکھ کر سمجھاتے ہیں. یہ تمہارا ہے یتیم لیکن یہ یادو ہے نا فآویٰ کے بعد میں کیا کیا مد صلہ میں سے کیا مد صلہ میں سے حرف مد کے بعد ہاں کیا بول رہا تھا واو جو ہے مد صلہ میں سے کائے میں سے مد صلہ میں سے واو کے بعد میں جو یا آ رہی ہے نا کیا کھڑا زبر کے بعد کوئی سا بھی حروف آئے کوئی سا بھی حروف آئے آخر میں کائے میں آخر تو وہ ساکن نہیں ہوگا اس کے اوپر جزم لکھا ہوا نہیں ہوگا. کہیں بھی دیکھ لیجیے قرآن شریف میں بھی کہیں آئے گا ٹھیک ہے آخری حرف پر جزم نہیں آئے گا. اسی لیے جو آخری حرف پڑھا نہیں جاتا کیونکہ اس کے اوپر جزم نہیں. سمجھ میں آ رہی بات. جس بھی حرف پر جزم ہوگا وہی پڑھا جائے گا ورنہ پڑھا نہیں جائے گا. بس ایک الف ہے ایسا جو بغیر جزم کے ساکن ہوتا ہے اس پہ جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا اس کو پڑھا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. جزم لکھ دیں گے تب بھی پڑھیں گے اور جزم نہیں لکھیں گے تب بھی پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی بات. لیکن الف بھی بعض جگہ جو ہے پڑھا نہیں جاتا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. آپ کا قاعدہ چل رہا ہے قاعدہ اخفاء حقیقی کا. اخفاء حقیقی کس طرح سے پہچانی جاتی ہے. کس طرح سے پہچانی جاتی ہے دیکھ جائیے. اب ہم قرآن شریف میں پڑھ رہے ہیں کہیں کوئی سی لائن سمجھ آ رہی بیٹا کہیں بھی پڑھ رہے ہیں ہم ہمارے استاد معلوم کر رہے ہیں کہ بیٹے بتاؤ قاعدہ کہاں ہو رہا ہے. کیا قاعدہ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے دو زبر دو زیر اور
ये फिर दो ज़बर, ये फिर दो ज़ेर, ये दो पेश कहाँ आ रहे हैं, कहाँ कौन से हर्फ हैं, ये तो देखना है। समझ वाली बेटे, समझ वाली बात, ये बात समझ वाली। हमें क्या देखना है, तनवीन, क्या देखो तनवीन जो ना तीनों को कहते हैं, क्या तीनों कहते हैं ना, दो ज़बर को भी, दो ज़ेर को भी और दो पेश को भी। समझ में आ गई बात। और नून साकिन तो है ही अलग, नून साकिन पहचान तो है कि भाई जज्म वाले नून को नून साकिन कहते हैं, समझ गए। इसमें से कौन सी चीज आ रही है उस लाइन में, कौन सी लाइन हम पढ़ रहे हैं, ये देखो क्या कौन सी पढ़ रहा है, ये तो मैंने लिखा है, कहीं भी हम पढ़ रहे हैं क्या देखेंगे, इसमें से कोई सी भी हरकत आ रही है या नहीं, तनवीन आ रही है नहीं, नून साकिन है ये नहीं है, उस लाइन में देखना। हमारा उस्ताद पूछ रहे हैं ना, बताओ बेटा कायदा कहाँ हो गया है, समझ में आ रही बेटे, समझ में आ रही ना बेटी, ना रही तो बता देना भी, अरे ये बात समझ में आ रही। हाँ, तो ये जो तनवीन है ना, अब हम देख रहे हैं भाई पता नहीं नून साकिन भी हो सकता है, दो ज़बर भी हो सकते हैं, दो पेश भी हो सकते हैं और दो ज़ेर भी हो सकते हैं। अब हम गौर से देखेंगे उस लाइन में कहाँ आ रही है। अब हमने देख लिया यहाँ दो ज़बर आ रहे हैं, क्या क्या दो ज़बर आ रहे हैं, तो कारी साहब से कह दीजिए जी यहाँ कायदा हो गया दो ज़बर की तनवीन, क्या कायदा हो गया है, उस्ताद मालूम कर लगा दो ज़बर की तनवीन कहाँ है, बता दो जी मीम के ऊपर है, काय के ऊपर है, अब उस्ताद पूछेगा बेटा कौन सा कायदा हो रहा बताओ, तो हम क्या बताएंगे, अब तो कैसे पता चलेगी हमें, तो तनवीन से आगे वाला जो हर्फ है वो वाला हर्फ देखेंगे, आप क्या देखेंगे, तनवीन से आगे वाला हर्फ, समझ गए बात, आगे वाला हर्फ कौन सा है, कौन सा है, अब जो है फा जो है हमने ये ऊपर वाला हर्फ याद कर रखे 15, समझ गए, लगा देगा हमें एकदम पता चल लगा फा कौन से हर्फों में से, तो फा इनमें से है, फा में से या नहीं, समझ गए, फा में से है, तो फौरन क्या देंगे जी अब फा हकीकी होगा, क्योंकि ये वाला फा जो है ये फा के 15 हर्फों में से, काय में से फा के, हाँ। और दूसरा कायदा तुम्हें पढ़ाया था मैंने हुरूफ हलक़ी का, कायदे इज़हारे हलक़ी, हुरूफ हलक़ी कितने 6, हमज़ा, हाँ और आइन, हाँ और गैन, खा, समझ में आ रही बेटा, हुरूफ हलक़ी कितने 6, 1 2 3 4 और ये हो गए 6, समझ गए। ये जो तनवीन है जैसा हमें पता चला था जी यहाँ दो ज़बर की तनवीन आ रही है मीम पर, यहाँ कायदा होगा, समझ गए। अब दो ज़बर की तनवीन जो से हर्फ पर है, काय पर है, मीम पर, काय पर, मीम पर है, समझ में आई बात। तो अब मीम के बाद वाला जो हर्फ है अलिफ होगा उसको छोड़ देंगे, क्या अलिफ तो जहाँ दो ज़बर की तनवीन आएगी वहाँ पढ़ा नहीं जाएगा, अगर वहाँ सांस तोड़ेंगे, दो ज़बर की तनवीन आ गई सांस तोड़ेंगे तो उसको अलिफ के बराबर खींच देंगे, समझ के बाद जैसे मैंने पूछवाया कहीं जगह, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये वाला हर्फ क्या है, फा, कौन सा हर्फ है, अब ये फा हर्फ जो है अगर हुरूफ हलक़ी में से है, काय में से, हुरूफ हलक़ी में से है तो इज़हार हलक़ी का कायदा हो जाएगा, और अगर इख़फ़ा के 15 हर्फ में से है तो इख़फ़ा ऐसे पता चलता है, समझ में आ गई बात बेटा, बात समझ में आ गई बेटे, राहिल से बता बात समझ में आ रही, हाँ बहुत अच्छा है। देखिए ये जो हमें यहाँ जो है दो ज़बर की तनवीन आई है, ठीक है, दो ज़ेर की भी आ सकती है, तो दो ज़ेर की बता दो अपने उस्ताद से, ये दो ज़ेर की तनवीन, दो ज़ेर की तनवीन आई है, कहाँ दो ज़ेर की तनवीन आई है, यहाँ कायदा होगा, जहाँ दो ज़ेर की तनवीन है वहाँ कायदा होगा, ये कह दो, ये मत कहना कि दो ज़ेर की तनवीन का कायदा होगा, दो ज़ेर की तनवीन का कायदा नहीं होता है, समझ गए, बस ये होता है जी यहाँ कायदा होगा, बस मुझे बता दीजिए या हर्फ बता दीजिए जी मीम के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है यहाँ कायदा होगा, समझ गए बात, की बात समझ में आ गई। अब दो ज़ेर जो है हमारे नूरानी कायदे में देखिए किरामन कातिबीन में क्या दो ज़बर की क्या है तनवीन है, अब
अब देखो नून साकिन भी देखो पूरे नीचे तक देखो, नून साकिन है कहीं कोई से लफ्ज में? कौन से लफ्ज में? तू बता बेटे राहिमीन पढ़ के कौन से लफ्ज में नून साकिन? जहां उन्हें रखी तेरे हैं, ये है फलन तजिदा, क्या है ये नून साकिन की क्या? तो यहाँ भी कायदा होगा, क्योंकि मैंने बताया ना, आप इधर देखो ये नून साकिन जहां भी आएगा वहां भी कायदा होगा, जहां दो ज़बर की तनवीन आएगी वहां कायदा होगा, जहां दो ज़ेर की तनवीन आएगी वहां कायदा होगा, जहां दो पेश की तनवीन आएगी वहां आएगा होगा। ये बता देंगे हम उस्ताद से कि यहाँ कायदा होगा, ठीक है, मीम पर काय पर मीम। लेकिन ये जब बताएंगे, जब हमारे उस्ताद मालूम करेंगे बेटा बताओ कौन सा कायदा होगा, जब यहाँ हो रहा है तो समझ गए कौन सा कायदा होगा। तो जब हम देखेंगे जी आगे जो है हम अपना दिल में एकदम सोच लेंगे वो जो फाया फा कौन से हाथों में से, फा इसमें भी नहीं हो पाता में से, फा हकीकी में से, तो कौन सा कायदा हो गया? फाए उस्ताद कहेगा बेटे बताओ फा हकीकी तुम्हें कैसे पता चल गया? फा हकीकी हो रहा है, तो उस्ताद साहब से कह दो जी मैंने ऐसे पता चलाया जी दो मीम के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, और तनवीन के बाद आगे जो 15 हर्फ हैं उसमें से फा है, क्या इसलिए फा हकीकी हो गया। अगर इसमें से हर्फ हल्के में से कोई सा हर्फ होता तो ये हर हल्के हो जाता। समझ में आ गई बात समझ में आ गई बेटे? ये और समझाऊं, समझ में आ गई? हाँ, ये फा हकीकी का कायदा जो याद कर लेना, ठीक है। हमें लाइन में जो मैं किसी से मालूम कर सकता हूँ, कौन सी भी लाइन पढ़ाएंगे तुम सबक में, कौन सी भी सबक में आयत सुनाएंगे, ठीक है, उसमें अगर कायदा होगा तो जब ही होगा जब ये आएंगे, क्या आएंगे? नून साकिन, दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश, इसको तनवीन क्या कहते हैं? तीनों आ जाते हैं। तनवीन क्या कहते हैं? समझे तीनों आ गए, दो ज़बर भी आ गए, दो ज़ेर भी आ गए और दो पेश भी आ गए। समझ में आ गई बात? तो तनवीन ही कहते हैं जी, दो ज़बर की तनवीन कह दो, ये जी तनवीन आई, ये भी नून साकिन आई। समझ में आ गई बात? तो जहां भी आएंगे नून साकिन या तनवीन वहां कायदा होगा उस लाइन में, वरना कायदा होने का नहीं है। समझ में आ गई बेटा बात समझ में आ गई? कायदा होगा लेकिन ये पता नहीं कौन सा होगा। अब कौन सा होगा उसको पता लगाने के लिए हम अगला वाला हर्फ देखेंगे। क्या देखेंगे? अगला वाला हर्फ जो तनवीन से बाद में आ रही है। समझ गए? जैसे ये है फलन नून साकिन के बाद में क्या देखो, नून साकिन के बाद क्या है? कौन सा हर्फ बेटे? राहिमीन। नून साकिन के बाद है हाँ, ता कौन से हर्फों में से बताओ? हरूफ हल्के में से है ये या फा के 15 हर्फों में से है? ता समझ गए? तो बता देंगे कि फा हकीकी होगा। क्या होगा? हर्फ से पता चलता है। समझ गए बात बेटा? हाँ, हमें ये तो पता चल गया कि नून साकिन है तो समझ लो कायदा होगा। अब ये पता नहीं है कौन सा होगा। समझ गए बात? ये पता नहीं है कौन सा होगा। अब कौन सा होगा? अब हमें अगला वाला हर्फ देखना है। क्या? अगला वाला हर्फ देखना। वो कैसे? हमें याद होगा तभी तो। हमें 15 हर्फ भी पता है कब कौन से, हमें 6 हर्फ भी पता है हर हर्फ की कौन से, तभी तो बताएंगे। तो हमें याद होने चाहिए पता देंगे तो एकदम सोच लेंगे ये ता जो है एफा के 15 हर्फ में से, तो समझ लो क्या होगा? एफाए हकीकी होगा। समझ गए? समझ में आ गई बात बेटा? चलिए आगे शुरू करते हैं। रोक दीजिए।